Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem When You Are Old by William Butler Yeats. So this particular poem, it was published in 1893 and it was published in his collection The Rose. This is a 12-line poem and the rhyme scheme is ABBA and the theme is love, beauty and aging. And here the poet is addressing his beloved who is not ready to accept his love. और जो विलियम बटलर यीट्स हैं, he was born on 13 June 1865 and he died on 28 January 1939. So before I start the video, those who are new to my channel, please do subscribe my channel. So as you know, the theme of the poem is love, beauty and aging. So the poet here, he loves a particular girl. जो पोएट हैं वो एक लेडी को बहुत पसंद करते हैं और वो लेडी जो है on the other hand she is not accepting the love proposal of the poet, और वो proposal accept नहीं कर रही है. So the poet here he is telling, he is saying that you are young now, that is why you are not accepting my proposal, but as you will gradually, जब तुम old हो जाओगे and then you will realize कि तुमने मेरा proposal accept क्यों नहीं किया. So let's start the poem. When you are old and grey and full of sleep. So here the poet is addressing the old age. What happens at the old age? At old age you grow old, your hair starts to change the color from black, they turn grey, and you are full of sleep. And you know, old age and the people who are old, they always feel sleepy, they are tired. So these are the signs of aging. तो पोएट यहाँ पे वही कह रहे हैं अपने बिलवेड से कि when you will grow old, तुम्हारे हेयर सारे ग्रे हो जाएंगे and you will be full of sleep. And nodding by the fire, take down this book. And when you will be sitting by the fireside, when you will grow old and one day when you will be sitting by the fireside, take this book and slowly read this book. And slowly read and dream of the soft look. और तुम वहाँ पे बैठ के तुम अपने जब तुम अपने यूथ के बारे में सोचोगी, एट दैट टाइम यू विल रियलाइज दैट हाउ ब्यूटिफुल यू वेयर. तुम कितनी खूबसूरत थी, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत थी, एंड यू वर सो मैजिकल, योर आइज वर सो मैजिकल. योर आइज हैड वंस and of their shadows deep. Your eyes were soft, they were magical and they were so real and you were full of beauty. तुम्हारे अंदर कितनी खूबसूरती थी, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी. How many loved your moments of glad grace? How many? तो यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं बहुत सारे लोग थे जो तुम्हारी ब्यूटी से तुम्हें पसंद करते थे. They loved your beauty. तुम इतनी खूबसूरत थी, लोग तुम्हारी ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा तुम्हें देखते थे, तुम्हें एडमायर करते थे. Whether it was and loved your beauty with love false or true. Whether their love was false or true. कुछ लोग थे जो तुमसे रियल लव करते थे. They love you passionately. और कुछ थे वो ऐसे ही सुपरफिशियली ऊपर से तुम्हारी बाहरी खूबसूरती से तुम्हें प्यार करते थे. बोथ द पीपल वेर प्रेजेंट देयर. सम पीपल दे यूज टू लव यू वेरी इमोशनली, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और कुछ लोग बस तुम्हारी आउटर ब्यूटी से तुम्हें प्यार करते थे. बट वन मैन लव द पिलग्रिम सोल्स इन यू. बट रिमेंबर दैट वन मैन वॉज प्रेजेंट देयर हु लव्ड the soul in you. That means here the poet is talking about himself. Poet यहाँ पे अपने बारे में बोल रहे हैं. वो कह रहे हैं कि एक आदमी था, one man was present there who loved your soul. बाहर से तो प्यार करता था but he loved your soul. जैसे पिलग्रिम्स जो पीपल होते हैं जो पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, वहाँ पे वो पिलग्रिमेज में जाने से उनको जितनी शांति मिलती है, जितना सुकून मिलता है, और जो डिवोशन वो अपने गॉड को देते हैं, like those kind of feeling, those kind of devotion I had for you. और ये सब तुम अभी रियलाइज, यूथ में ये रियलाइज नहीं करेगी, वो जाके जब ओल्ड हो जाएगी then at that time she will realize. And love the sorrows of your changing face. So the poet here is telling the poet loved the sorrows also. वो उसकी जो हैप्पीनेस में जितना खुश था, उसकी sorrows को लेकर भी वो उतना ही दुखी था. But this because the poet loved दिस लेडी वेरी मच. वो उसके साथ रहना चाहता था हमेशा. वो अपनी खुशी में भी रहना चाहता था, दुख में भी रहना चाहता था, एंड ऑल द टाइम. सो दैट इज़ वाई ही इज़ टेलिंग दैट आई लव्ड योर हैप्पीनेस ऑल्सो एंड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर सोरो ऑल्सो. वो उसके साथ खुशी में भी था और दुख में भी था. एंड ही इज़ ओके विथ हिज एजिंग एंड हर एजिंग. वो उनके साथ में जो ग्रेजुअली जो वो एज करेंगे, जो बूढ़े होंगे, उनके उस बूढ़े होने तक भी वो उसके साथ रहेंगे.
and bending down beside the glowing bars, and when you will be sitting by the fireside and stooping there, जब तुम fireside में बैठ के नीचे झुकोगी, and murmur a little sadly how love fled, और जब झुक के तुम अपने आप से मरमर करोगी कि ये जो लव था ये कितनी जल्दी चला गया, ये जो टाइम था कितनी जल्दी पास हो गया, और ये सब चीज़ें कितनी जल्दी निकल गई. एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, एंड यू विल थिंक हाउ लव लेफ्ट यू सो क्विकली. जब तुम फायर साइड के पास बैठोगी, एंड दैट टाइम यू विल रियलाइज कि जो ये प्यार है ये कितनी जल्दी तुम्हारे हाथों से चला गया. एंड हिड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स, एंड दिस लव फ्लू अवे, एंड इट वेंट अवे थ्रू द माउंटेन्स एंड इन बिटवीन द स्टार्स. और तुम देखोगी जो ये तुम्हारा प्यार है ये माउंटेन से होते हुए ये स्टार्स के बीच में जाके छुप गया है. एंड एट दैट टाइम यू विल रियलाइज दैट वॉट यू हैव, तुमने क्या खोया है, वॉट यू हैव लेफ्ट, तुमने क्या खोया है, उस टाइम तुम्हें ये रियलाइज होगा. दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम, एंड द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ लव, ब्यूटी एंड एजिंग. जो पोइट हैं वो बताना चाहते हैं कि लव जो है वो पोइट अपने बिलवड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. एजिंग इज़ नेचुरल, वो सबके में आता है, सबके लाइफ में आता है एजिंग. बट द थिंग दैट यू हैव लॉस्ट, वो चीज़ तुम्हें यूथ में रियलाइज़ नहीं होगा, बट दैट थिंग यू विल रियलाइज़ इन योर ओल्ड एज कि तुमने क्या खोया है. एंड दैट टाइम इट विल बी वेरी लेट. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम समझ में आई हो. प्लीज़ डू राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.